Dear students, welcome back. Today we will study isocyanide. अगर हम isocyanide की बात करें, so their journal formula is RNC. अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, we talk of the structure, तो याद रखें बच्चे R single bond N, then there is double bond between nitrogen and carbon, and there is one coordinate bond formed by this nitrogen with this carbon, and carbon contain one lone pair. So this is electronic structure of what isocyanides. इससे repeat कर देता हूँ. There is bond between carbon and nitrogen, then there is double bond and one coordinate bond. Okay. And this carbon contains 2 electrons. आपने जरूर पढ़ा होगा कि once coordinate bond is formed, it behaves like a covalent bond. If you show it as covalent bond, then nitrogen will be shown as carrying positive charge and carbon being shown as carrying negative. Rest of the structure remain same. So you can write either of these two structures. यहाँ पे आपने दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास दिखाए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ दिखाया है कि वंस फॉर्म्ड, एक बार बन जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, once formed it behaves like covalent bond. So you can write this structure or this structure. Now next is nomenclature, how to name them. Isocyanides are known only by their common names. They have no IUPAC names. So they are known as alkyl isocyanide, और aromatic होंगे तो aryl isocyanide. फॉर एग्जाम्पल जैसे CI3NC, what you will call it? You will call it methyl isocyanide. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कंपाउंड होगा, you will call it phenyl isocyanide. So they have only common names. Next, we have their methods of preparation, how to prepare them, how to prepare isocyanide. One method which you have already studied in properties of alkyl halides, that is, first method is by treating alkyl halides with, को याद है तो, first method from alkyl halides. कैसे बनाएंगे? By treating alkyl halide with silver cyanide. अगर आप पोटाशियम साइनाइड लें, if you take potassium cyanide, so it is ionic compound, attack occur from C negative on R. In this case we get cyanides. ये आपने साइनाइड की प्रेपरेशन में किया है. Alcoholic solution of potassium cyanide is an ionic compound, but here the bond between silver and carbon is predominantly covalent. सिल्वर इज ए नोबल मेटल आप जानते हैं, तो कार्बन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज ना के बराबर है, तो फिर कौन अटैक किया? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन. ये बात बोले कि दिस बॉन्ड इज पोलर एंड हेंस अटैक अकर ऑन, एंड प्रीडोमिनेंटली वी गेट आइसोसाइनाइड. साइनाइड इसमें बड़ा कम बनता, प्रीडोमिनेंटली आइसोसाइनाइड, प्लस क्या बनता बच्चे? सिल्वर हैलाइड.
दिस इज वन मेथड बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड। हमने कहा अल्काइल है मतलब इस मेथड से एराइल साइनाइड नहीं बनेंगे, कीप दिस इन माइंड। हमने कहा अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर साइनाइड, आप इस मेथड से एराइलाइड बना के आ जाएंगे एग्जाम में, सो दैट इज रॉन्ग। आपको क्या मिलेगा बच्चे, यू विल गेट मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस AgCl। इसी तरह से अगर आप लेते हैं मिथाइल क्लोराइड प्लस सिल्वर साइनाइड, तो अगेन रिएक्शन अकर फ्रॉम हियर, दिस बॉन्ड इज पोलर, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा आपको। In this case, what do we get? We get ethyl isocyanide plus क्या बना, silver। So this was one method. Next method, from amines। From amines, याद करिए बच्चे, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन में एक रिएक्शन स्टडी किया था, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन फ्रॉम अमीन्स। अब मैंने यहां नहीं कहा अल्काइल अमीन, मतलब इस मेथड से एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों आइसोसाइनाइड बन जाएंगे, और इस रिएक्शन का नाम भी है एक बच्चे, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। सो ये रिएक्शन क्या है कि व्हेन अमीन, प्राइमरी अमीन, बट एक बात याद रखना, ओनली प्राइमरी अमीन, यहां लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूं प्राइमरी अमीन। व्हेन प्राइमरी मीन्स आर ट्रीटेड विद, इसके साथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म in presence of alkali, it result in formation of isocyanide। ने क्या बनाया बच्चे, आइसोसाइनाइड, along with formation of potassium chloride and water। आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइल अमीन भी कहते हैं। जैसे सपोज करें आर अल्काइल हो तो हो गया अल्काइल आइसोसाइनाइड, इट इज ए पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, और अल्काइल कार्बाइल। कार्बाइल अमीन भी इनका कॉमन नेम है, कॉमन नेमिंग में आप इसको भी यूज कर सकते हैं। So alkyl isocyanide or alkyl carbylamine, this reaction is called as carbylamine reaction। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एनिलीन को लेके चलते हैं, इफ यू स्टार्ट विद एनिलीन, क्योंकि हमने कहा प्राइमरी अमीन तो कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक आप लेके चल सकते। तो इफ यू टेक एनिलीन, एनिलीन treated with chloroform, chloroform in presence of alkali, 3 मॉलिक्यूल इसमें HCl के निकलेंगे बच्चे, 3 molecule of HCl are lost here, and what do we get? We get phenyl isocyanide plus potassium chloride plus। इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, फिर मैं रिपीट करूंगा फिर भी फॉर योर बेनिफिट। ये रिएक्शन कैसे हुआ, let us discuss the mechanism of this reaction, because this reaction mechanism is very important। क्लोरोफॉर्म जो है बच्चे, that is acidic in nature, mechanism of कार्बाइल अमीन रिएक्शन, mechanism of कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इसमें क्लोरोफॉर्म आपको पता है इट इज ए एसिड, एसिडिक इन नेचर, because of strong electron withdrawing effect of 3 chlorines on carbon and carbon on hydrogen, so it has partial positive charge and these chlorine carry partial negative। हमने अल्कलाइन मीडियम दिया है तो OH नेगेटिव
will attack here, acting as nucleophile and free this bond, and we get carbonyl. हमें क्या मिल गया बच्चे? इनिशियली कार्बेनाइन, कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज, माइनस क्या हो गया? 1. अब कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच नाउ, so chlorines are withdrawing electron from carbon. Carbon अब इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो चुका है, it allows the chlorine to withdraw the electron. माइनस क्लोरीन नेगेटिव, एक क्लोरीन निकलेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा. अब इसको एहसास होगा कि मैं तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन. पेयर लूज करने के बाद इसका 6 इलेक्ट्रॉन है. डाइवेलेंट कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कार्बीन. दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन. जैसे ये बनेगा, aniline acting as nucleophile attack on it because it is electronically deficient. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? डेफिशिएंट. ये इसके ऊपर अटैक कर देगा. जैसे अटैक होगा, what will happen? N will acquire positive charge and C will acquire negative charge. ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास. अब क्या होगा? नाइट्रोजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, so it will lose H positive and this H will be taken up by this C negative. What you get? You get this compound N, लोन पेयर आ गया यहाँ पे. यहाँ क्या आ गया बच्चे? H. यहाँ क्या आ गया? CH, Cl. ठीक है. अब क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, here there is a लोन पेयर प्रेजेंट. ये क्या करेगा बच्चे? ये क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, इस चीज को मत भूलिए. क्लोरीन इज विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर इसको विथड्रॉ करने में हेल्प करेगा. जैसे ये विथड्रॉ करेगा, क्लोरीन नाइट्रोजन लोन पेयर लेके कार्बन के पास पहुंच जाएगा फॉर इट्स हेल्प, ताकि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ना हो, है ना. तो नाइट्रोजन इज हेल्पिंग आउट एडजेसेंट कार्बन. डबल बॉन्ड CH, Cl, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो बली किसकी लगनी बच्चे? जैसे यहाँ पे H की, यहाँ भी H की लग जाएगी. सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसको अपने आप को. माइनस क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव. एंड व्हाट यू गेट? यू गेट दिस. फिर से इसके पास लोन पेयर आ गया बच्चे. देखिए, फिर से क्लोरीन तो विथड्रॉ कर ही रहा है, नाइट्रोजन फिर इसकी हेल्प कर देगा. माइनस क्लोरीन यहाँ लिखा नहीं हमने, नेगेटिव. यहाँ भी माइनस क्या हो गया बच्चे? क्लोरीन नेगेटिव. आपको क्या मिल गया? देखिए बच्चे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड हो. नाइट्रोजन एक किस्म के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे. दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्योंकि इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन. आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म में शो करेंगे तो चार्ज शो नहीं करना, बट अगर इस तरीके से शो करेंगे, यू हैव टू शो द चार्ज. नाइट्रोजन क्या हो गया? H. कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इधर से इसको बॉन्ड मिला, इधर से इसने छोड़ दिया. तो डेफिशिएंसी किसको होगी? नाइट्रोजन को. लेकिन नाइट्रोजन आपको पता है बच्चे, ज्यादा देर पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं कर सकता. इसकी कोशिश रहेगी कि मुझे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो. तो ये प्रेशर किस पे डालेगा? कार्बन. कार्बन किस पे डालेगा? H. इट्स H बिकम एसिडिक. H क्या हो जाएगा? एसिडिक. उसका फायदा कौन उठाएगा? OH नेगेटिव. मीडियम हमने बेसिक दिया हुआ है. OH नेगेटिव H पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, यहां से H पॉजिटिव निकाल लेगा. एंड अल्टीमेटली व्हाट यू गेट? मैं इधर लिख देता हूं नीचे इसको टर्न करके. अल्टीमेटली व्हाट यू गेट? यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड C. N पॉजिटिव. ये बॉन्ड बच्चे इसके पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और C नेगेटिव. नाउ टू सम एक्सटेंट इट इज स्टेबल. कैसे स्टेबल है बच्चे? क्योंकि पॉजिटिव के पास क्या है? नेगेटिव इधर.
तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। कार्बन इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच नाउ, है ना। तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए या इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, दैट इज योर चॉइस। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में शो करते हैं जो इसने बॉन्ड बनाया, फिर आपने चार्ज शो नहीं करना, राइट इट लाइक दिस, you can write it like this, phenyl isocyanide. This was the mechanism of carbylamine. Now दो ही मेथड थे प्रेपरेशन के। Now we will study the properties of isocyanide. आइसोसाइनाइड्स याद रखना बच्चे, वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन बनाता ना हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास लोन पेयर नहीं है, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज कैरिंग पॉजिटिव। ये वाटर में इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका याद। अब बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की वन प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस। मैं थोड़ा कल को आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन साइनाइड और साइनाइड भी आ सकते हैं, तो आपको याद होगा अगर हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड के साथ, 2 टाइम वाटर इसमें यूज होता ना, in presence of acid, dilute acid, there is complete hydrolysis and we get carboxylic acid plus ammonia, carboxylic acid plus ये बनता, पहले एमाइड बनता, अगर स्टेप वाइज करना हो 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता, फाइनल प्रोडक्ट ये बनता। अब इसमें क्या होगा ये देखिए, इसमें भी विद डाइल्यूट एसिड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। दिस इज आर एन सी पॉजिटिव, सी क्या आ गया बच्चे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं बच्चे। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव ना डालने हो तो आप सीधा लिख सकते आर एन सी ऐसे। तो हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बच्चे इसमें क्या हुआ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब इसमें देखिए कि इस साइड से क्या बना, अमोनिया, इस साइड बच्चे आर है तो क्या बनेगा, अमीन, यू गेट अमीन नॉट अमोनिया, ये फर्क है क्योंकि एन के साथ आर लगा हुआ है। अब इस साइड से क्या बना था बच्चे, एसिड, आर के साथ सी डबल एच, इस साइड आर है नहीं तो सिंपलेस्ट एसिड बनेगा, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो अगर डिफरेंस करना हो तो इसमें है कि वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया, इसमें है वी गेट फॉर्मिक एसिड एंड अल्काइल। तो व्हेन हाइड्रोलिसिस ऑफ this isocyanate is carried out, complete hydrolysis, we get what, amines, alkyl amines and formic acid, HCl साइड से। तो इसमें 2 टाइम वाटर मॉलिक्यूल, सेम सेम उसी तरह से, फर्क है सिर्फ ग्रुप कौन से लगे हैं, आर है तो RCOH, इसमें आर नहीं है तो HCOH, इधर आर इधर लगा है तो वी गेट अमीन, इसमें अमोनिया। नेक्स्ट, इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं है, इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, उसमें पार्शियल भी थी और पार्शियल में उसमें अमाइड बनते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आ गया बच्चे रिडक्शन। रिडक्शन सिमिलरली जैसे उसमें भी हाइड्रोजन निकल से की हमने, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से की, और सोडियम एल्कोहल, सोडियम एल्कोहल। तो आइसोसाइनाइड्स को जब बच्चे क्या किया गया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। जब रिड्यूस किया गया से विद हाइड्रोजन निकल और एनी ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स, एनी ऑफ दीज, तो हमें क्या मिला बच्चे, सेकेंडरी मीन और NHCH3। एक चीज इसमें आपने नोट करनी है, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि बॉन्ड 3 थे तो 2 टूटे, 2 टूटे ना तो 2 H क्यों नहीं मिले N को, ये एक बॉन्ड इसने अपना वापस लिया लोन पेयर फॉर्म। जब इसने बॉन्ड क्यों दिया था,
कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। कार्बन देखिए ना, कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। अगर आप देखें इसको, कार्बन के पास 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी डेफिशिएंसी को कम इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था। लेकिन जब कार्बन को बच्चे बॉन्ड मिल रहे हैं एच की फॉर्म में, कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे बच्चे, 1, 2 और एक ये लोन पेयर पड़ा है, इसको 3 बॉन्ड बन गए। 2 बॉन्ड टूटे, एक लोन पेयर है, इसको भी इसने यूज कर लिया। तो इसने अपने 3 बॉन्ड जब बना लिए, टोटल कितने हो गए, 4, 3 एच के साथ, एक ये 4। तो इसकी डेफिशिएंसी खत्म हो गई, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर वापस रीअट्रैक्ट कर, नाइट्रोजन को एक ही एच मिलेगा और कार्बन को कितने, 3। सो वी गेट सेकेंडरी अमीन, बट ऑन वन साइड देयर विल बी ऑलवेज मिथाइल। याद रखना, एक साइड आर जो आपने लगाया होगा, आर ग्रुप जो भी लगाया होगा, बट दूसरी साइड CH3 ही बनना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज करें ये कंपाउंड ले, CH3 CH2 NC, तो रिडक्शन करें हाइड्रोजन निकल या सोडियम अल्कोहल किसी के साथ भी, तो व्हाट वी विल गेट CH3 CH2 NHCI। अब इसके केस में क्या बना था वो भी बता देता हूं। उसमें था RCN, उसमें सिंपल बॉन्ड थे, उसमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। जब आपने हाइड्रोजन निकल से ट्रीट किया, वी गॉट RCH2NH, 2 बॉन्ड कार्बन के टूटे, 2 नाइट्रोजन, एडिशन पाई बॉन्ड पे होगी, सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट रहना, अदरवाइज तो कंपाउंड ही खत्म हो गया। तो वी गेट प्राइमरी मीन, तो इसमें प्राइमरी मीन बने बच्चे, इसमें क्या बना, सेकेंडरी। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस, अब ये एडिशन रिएक्शन क्यों करेगा, ओनली द आइसोसाइनाइड डू एडिशन रिएक्शन, ऐसा क्यों, और से सॉरी आएगा, ये तो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें बच्चे, ये भी इसका स्ट्रक्चर है, N ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव एंड दिस इज, इसमें सारा प्रेशर देखिए कार्बन के ऊपर पड़ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इज ट्राइंग टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका कार्बन एटम है, एक तो वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, और उसको 2 बॉन्ड की कमी महसूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन 2 की कमी महसूस हो रही, बट बॉन्ड भी 2, एक बॉन्ड ये यहां से बना सकता है, एक यहां। इसी की वजह से इसमें एडिशन रिएक्शन होते हैं। साइनाइड्स में ये प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, साइनाइड में ये प्रॉब्लम नहीं है, तो साइनाइड डोंट अंडरगो दिस टाइप ऑफ एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। दीज एडिशन रिएक्शंस आर एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ सल्फर, एडिशन ऑफ अजोन। जैसे क्लोरीन की एडिशन करी बच्चे हमने, व्हाट वी गॉट दिस कंपाउंड RN। जैसे ही क्लोरीन को बॉन्ड मिले, ऑक्टेट पूरा हुआ, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर वापस ले लिया। सेम इज द केस विद सल्फर, सिंपल रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चे। प्लस सल्फर, जैसे ही कार्बन को बॉन्ड मिले, अपना ऑक्टेट पूरा हुआ, नाइट्रोजन ने लोन पेयर वापस ले लिया। सेम इज द केस विद अजोन, अजोन अजोन गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, प्लस कैसे हो रहा है ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाई ऑन आइसोसाइनाइड एंड नॉट बाई साइनाइड। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। आइसोसाइनाइड्स गिव एडिशन रिएक्शन विद क्लोरीन, सल्फर एंड अजोन। रीजन इज ऑब्वियस। एंड लास्ट रिएक्शन इज, बच्चे लास्ट रिएक्शन क्या है, आइसोमराइजेशन। आइसोसाइनाइड की प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करें, इफ आइसोसाइनाइड्स आर
heated for a prolonged time, prolonged heating करें इसकी बच्चे, prolonged heating, लंबे समय के लिए हीट करें, हीटिंग करें, the isomerize into cyanides. So this was all about what isocyanides or carbyl. Thank you very much.